Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. And in the continuation of soil erosion lectures, today we will discuss about the estimation of soil loss due to wind erosion. As we know that there are two types of erosion generally, water erosion and wind erosion, and there is a huge loss of soil, and we can estimate this soil loss by equation, and we have discussed about the soil loss by water erosion, and there is a equation and already uploaded on this channel, and you can watch that lecture. And when you watch the lecture in the series, then you can make your concept clear. So it is my suggestion, please watch the lecture in the series and in the continuation, then you can understand the concept. So the soil erosion by wind, and that equation is known as universal soil loss equation, and there are several factors involved in that equation. Today we will discuss the equation estimated soil loss due to wind erosion. Wind erosion से कितना soil loss होता है इसका estimation के लिए there is a equation, and as compared to universal soil loss equation by water erosion, उसके कंपेरिजन में ये इक्वेशन बहुत डिफ़िकल्ट है और इसका प्रिडिक्शन करना, एस्टिमेशन करना वाटर इरोजन के कंपेरिजन में डिफ़िकल्ट होता है और काफ़ी इसमें फैक्टर्स की ज़रूरत होती है. बट देयर इज़ इक्वेशन एंड मे बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, and the equation or this estimated soil loss is based on several factors which affect the soil erosion. So there are so many factors, particularly particle size is very important because there are three type of wind erosion. जैसे हम जानते हैं तीन तरह का है, saltation, surface creep and suspension, and these three type depend on the soil particle size. So soil texture, soil structure with respect to its aggregate stability, then vegetation cover, और there are so many factors which affect wind erosion. तो उन्हीं फैक्टर्स से रिलेटेड ये इक्वेशन है. तो इस इक्वेशंस के जब हम फैक्टर्स को जानेंगे तो हमें पता चल जाएगा हाउ दिस फैक्टर अफेक्ट दी विंड इरोजन. तो यहाँ देखिए इस लेक्चर में इस इक्वेशन में दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं. नंबर एक, तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना सॉइल लॉस हो रहा है, नंबर वन. नंबर टू, हाउ दिस फैक्टर अफेक्ट दी विंड इरोजन. तो दो चीज़ें हमें पता चलती हैं कि कैसे उसको अफेक्ट कर रहा है, उसको हम डिस्कस करेंगे दोनों ही चीज़ों को. सो दिस इक्वेशन इज E इज इक्वल टू आई आर के एफ सी डब्ल्यू डी वी. तो ये एक इक्वेशन है और इसमें देर आर डिफरेंट फैक्टर्स. और देखिए इसका एस्टिमेशन डिफिकल्ट है, आसान नहीं है. और जो वाटर इरोजन के थ्रू होता है यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन E इज इक्वल टू आर के एल एस सी पी, उसका एस्टिमेशन ईजी है और उसका हमने एक एग्जाम्पल भी किया था. तो यहाँ ये डिफिकल्ट है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि क्या इक्वेशन होती है और उसमें क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं एंड हाउ दिस फैक्टर अफेक्ट द विंड इरोजन. So first one is I. I is soil cloudiness. How much clouds are present? And this cloudiness factor is very important. If there is large cloud, it means wind has to put or exert more pressure, more force to raise or for moving the soil particles. देखिए विंड इरोजन में सबसे पहला एक्शन क्या होगा, विंड क्या करती है, फोर्स एग्जर्ट करती है सॉइल पार्टिकल पे, और उस सॉइल पार्टिकल को या तो जंप कराएगी, जंप करके पार्टिकल मूव करेगा जिसको हम साल्टेशन कहते हैं, या पार्टिकल्स रोल करना शुरू हो जाएगा इस तरह से सरफेस पे, उसको हम सरफेस क्रीप कहते हैं, या एयर में आ जाएगा और एयर के साथ मूव करता चलेगा विंड के साथ, उसको हम सस्पेंशन कहते हैं. सो एक्सर्टिंग फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितना एक्सर्टिंग फोर्स होगा उतना ही विंड इरोजन होने का चांस होगा. अब देखिए क्लाउड्स है, क्लाउडिनेस है, लार्ज क्लाउड्स हैं. दिस इज लार्ज क्लाउड, दिस मीडियम क्लाउड एंड दिस इज स्मॉल क्लाउड्स, एंड विंड इज एक्सर्टिंग द प्रेशर. So definitely the size is more clouds. तो यहाँ क्या होगा, in this case wind erosion is less and in smaller particle wind erosion is high. तो जहाँ cloudiness है, जहाँ large clouds हैं, definitely wind erosion will be less. So this is the important factors. Now you can understand how the cloudiness or cloud size affect the wind erosion. तो cloudy field है तो वहाँ wind erosion का chance कम है. अगर हमने फील्ड में बहुत हैरो किया है, बहुत हमने उसको फाइन कर दिया है, रोटावेटर चला दिया है, देन क्लाउडिनेस रिड्यूसेस, क्लाउड साइज बहुत कम हो जाएंगे, क्लाउड्स कम रहेंगे, एंड इन दिस सिचुएशन देयर आर मोर चांसेस ऑफ विंड इरोजन. और इस समय अगर विंड चलती है, स्पीड ज़्यादा हो जाती है, डेफिनेटली विंड इरोजन विल बी मोर. अनदर फैक्टर इज सरफेस कवर फैक्टर. हाउ मच आर इज सरफेस कवर फैक्टर, हाउ मच
cover, soil is covered. So this is the soil surface, and suppose the cover is present, vegetative cover, maybe grass, maybe leaves, stem, okay, and this is the exerting pressure of air. So देखिए first step is exerting pressure. इस बात को समझें कि इरोजन तब होगा जब एक विंड उस पर एग्जर्ट करेगी प्रेशर, एक वेलोसिटी होगी जिसको हम थ्रेशोल्ड वेलोसिटी कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, उससे कम रहेगी वेलोसिटी, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पार्टिकल नहीं हटेगा, उससे स्पीड से ज्यादा होगा तब वो पार्टिकल डिटैच होगा। तो फर्स्ट वन इज डिटैचमेंट, सेकंड वन इज ट्रांसपोर्टेशन। तो डिटैचमेंट कब होगा? जब विंड आए और सॉइल पे प्रेशर एक्सर्ट करे और वो उससे सॉइल पार्टिकल इज मूव्ड आइदर इन एयर और अलोंग द सरफेस। सपोज दिस इज the soil surface and this is the vegetative cover, and this is another type soil, there is no vegetative cover. Definitely here wind is exerting pressure, but this exerting pressure on soil cover and less chances of soil particle detachment. Here when wind exert the pressure on soil particles on soil surface, then they can be easily detached. So it means if soil is covered with vegetative cover, less chance of soil erosion. तो जहां soil में vegetative cover maintain रहता है वहां erosion chances कम है. So this is the impact of surface cover factor. Then next is surface roughness factor. This is very important. Roughness means the depression and elevation in soil. Soil is not smooth. Field is not smooth. It is not like smooth. If you look, there is some depressions like that. This is the natural conditions. Some elevations are there and some depressions are there. So their roughness, this is known as roughness. तो soil natural field condition is always has some roughness. तो soil में roughness होती है, ऐसा नहीं होता बिल्कुल कोई फ्लैट, जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड बिल्कुल प्लेन है, इसमें कोई रफनेस नहीं है। सॉइल ऐसी बिल्कुल प्लेन नहीं होती। सॉइल में नेचुरल कंडीशंस में जो पार्टिकल्स होते हैं, कहीं ऊपर होते हैं, कहीं नीचे होते हैं, हालांकि वो माइक्रो एलिवेशन और माइक्रो डिप्रेशन होते हैं, लेकिन वहां होते हैं, उसको बोलते हैं हम रफनेस। इफ रफनेस इज मोर देन द चांस ऑफ सॉइल इरोजन आर लेस, क्योंकि क्या होगा, देखिए यहां सॉइल हिट करेगी, फिर यहां नीचे जाएगी, यहां हिट करेगी, नीचे जाएगी, तो यहाँ रफनेस जो होगी उस क्लॉडिनस से भी होगी, कई फैक्टर से होगी, तो यहाँ चांस क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। और स्मूथ है तो उसमें एग्जर्ट बहुत जल्दी करेगी, एग्जर्ट करेगी और उसको यहाँ से पार्टिकल्स को डिटैच करेगी, अगर यहाँ एयर इसको स्मूथ सरफेस पे कर रही है। अनदर इज सॉइल टेक्सचरल क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट। Soil textural class. There are 12 textural classes, okay, and that are decided by different proportion of sand, silt and clay. Sand कितना है, silt कितना है, clay, उससे textural class decide होती है। तो हम जनरली दो textural class को मानते हैं, जिसमें sand ज़्यादा हुआ वो light textured है, और जिसमें clay ज़्यादा है वो heavy textured है, और जिसमें silt और तीनों का equal है तो उसको medium textured हम कह सकते हैं। तो generally we consider two light and heavy textured. तो clay particles are more, and clay particles, देखिए clay particles are very small particles, okay, and sand particles are large particles, and this categorization is based on their size, okay. So when wind is there and particles are present on, suppose this soil surface, this is the soil surface, suppose, okay, and wind is exerting pressure, definitely these are small particles clay and they come into the soil, into the air through suspension. So first removal is of light particle, clay particle. तो जब भी wind erosion होगा तो सबसे पहले कौन से particles move करेंगे? clay particles move करेगा। organic matter जो है move करेगा because these are light particles। तो उससे क्या होगा, ये particles move करके air में आ जाएंगे और यहां से ये ट्रांसपोर्ट होकर के ब्लोइंग एयर के साथ, ब्लोइंग विंड के साथ दूर चले जाएंगे, और कब नीचे आएंगे, कब सेटल होंगे, या तो विंड स्पीड कम हो जाए तब ये नीचे आने शुरू हो जाएंगे सरफेस पे, या बारिश हो जाए, रेनफॉल हो जाए, प्रेसिपिटेशन हो तब नीचे आएंगे, अदरवाइज ये क्या रहेंगे, सस्पेंड रहेंगे। तो धूल रहेगी पूरी एयर में, वो धूल किससे है, यही सस्पेंडेड पार्टिकल से है। एंड लेटर ऑन व्हेन द विंड स्पीड इज फर्दर हाई, और ज्यादा हाई हो जाती है, तब ये जो लार्ज पार्टिकल है, सैंड पार्टिकल मूव करते हैं। तो इन जनरल देखिए क्या होगा, जब विंड चलेगी, थोड़ी सी विंड चलेगी, ये लाइट पार्टिकल्स मूव कर जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सैंड जो पार्टिकल्स है दे रिमेन इन सॉइल एंड क्ले पार्टिकल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर इज रिमूव्ड। तो ऐसे केस में देखिए टेक्सचरल क्लास इज चेंज। तो विंड इरोजन से सॉइल टेक्सचर चेंज होने का चांस होता है। सो दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड
कि टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर में भी चेंज ड्यू टू विंड इरोजन। देखिए वाटर इरोजन में क्या होगा, वाटर इरोजन में तो सबके साथ मूव कर जाएंगे, हालांकि क्ले पार्टिकल्स ज्यादा मूव करेगा, सैंड भी करेगा। तो देखिए जब भी इरोजन होता है तो वहां हमेशा लार्ज पार्टिकल्स रह जाते हैं, उस एरिया में बड़े पार्टिकल्स रहते हैं और लाइट पार्टिकल्स मूव कर जाते हैं। और विंड इरोजन में तो स्पेशली होगा, क्योंकि विंड में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, तो छोटे पार्टिकल्स को मूव करेगी, बड़े पार्टिकल्स को नहीं करेगी। तो विंड इरोजन से देयर आर चांसेस ऑफ चेंज इन सॉइल टेक्सचर। सो दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन एनी एग्जामिनेशन कि विंड इरोजन से सॉइल पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो वन इंपैक्ट इज चेंज इन सॉइल टेक्सचर। सो व्हाट इज सॉइल टेक्सचर क्लास? इफ इट इज क्ले, फाइन टेक्सचर्ड और हैवी टेक्सचर्ड, फाइन भी कह सकते हैं जिसमें छोटे पार्टिकल और उसको हैवी भी बोलते हैं क्ले को, तो फाइन और हैवी, देन इट मींस मोर चांस ऑफ विंड इरोजन। देन लोकल विंड फैक्टर, लोकल विंड मींस व्हाट इज द विंड स्पीड। देखिए विंड स्पीड क्या है, कितनी स्पीड से आ रही है और ईयर में कितने टाइम स्पीड उसकी ज़्यादा रहती है। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं विंड को गवर्न करने वाले, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं। जो विंड देखिए जो प्रेशर से मूव करती है, ये एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। यहाँ आपको केवल इतना समझना है, विंड स्पीड एंड ड्यूरेशन ऑफ विंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। विंड स्पीड इज मोर एंड इट प्रिवेलेंट ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द टाइम इन ईयर, देन मोर चांसेस ऑफ सॉइल इरोजन। तो जहाँ एरिया में, जिन एरिया में विंड बहुत ज़्यादा चलती है, तेज चलती है, बहुत दिनों तक चलती है, इरोजन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। देन फील्ड विथ फैक्टर, कि फील्ड की विथ की, व्हाट इज द विथ? इफ विथ इज मोर देन मोर इंपैक्ट ऑफ विंड एंड मोर चांसेस ऑफ सॉइल इरोजन। तो अगर नैरो उसमें हम बनाएं और उसमें हम प्रोटेक्टिव मेजर्स रखें तो इरोजन को वी कैन रिड्यूस इरोजन। तो फील्ड विथ इज मोर देन मोर चांस ऑफ सॉइल इरोजन। देन विंड डायरेक्शन फैक्टर, विंड डायरेक्शन, देखिए विंड डायरेक्शन या तो ईस्ट से आएगी या वेस्ट से आएगी, कभी कभी टर्बुलेंट एयर होती हैं, साइड भी चेंज कर लेती हैं। एंड दिस विंड डायरेक्शन इफ इज अलोंग द स्लोप, सपोज दिस इज द स्लोप ऑफ द फील्ड and wind direction is this direction, then the soil move easily, and wind direction is in this direction, then इस डायरेक्शन में चल रही है अक्रॉस द स्लोप, देन लेस चांस ऑफ सॉइल इरोजन। ऐसा नहीं है कि परपेंडिकुलर है अक्रॉस है तो इरोजन नहीं होगा, इरोजन होगा, बट लेस चांस ऑफ सॉइल इरोजन। सो व्हाट इज द विंड डायरेक्शन फैक्टर? सो वी कैन नॉट चेंज द विंड डायरेक्शन, इट इज नॉट ऑन आवर एंड, हम विंड डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस और उसको स्लोप को हम लेवल करें, हम अपनी कल्टिवेशन प्रैक्टिस अक्रॉस द स्लोप करें, तो वहाँ विंड के इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं। तो जिस डायरेक्शन में विंड रहती है उसी डायरेक्शन में फील्ड का स्लोप है, तो डेफिनेटली वहाँ क्या होगा, इरोजन ज़्यादा होगा। अनदर इज विंड बैरियर फैक्टर। बैरियर फैक्टर मीन्स जो विंड की स्पीड को कम कर दें। तो ये कोई स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, बिल्डिंग हो सकती हैं, इन जनरली क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं। सपोज विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन एंड ट्रीज आर प्रेजेंट, सम ट्रीज आर प्रेजेंट इन across the wind direction, definitely wind speed will reduce. So how many wind barriers are there and कितनी रोज हैं ट्रीज की, तो उससे क्या होगा, विंड की स्पीड कम होगी। तो शेल्टर बेल्ट है या विंड ब्रेक्स आर प्रेजेंट, देन विंड स्पीड रिड्यूसेस एंड द सॉइल लॉस इज रिड्यूस। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ विंड बैरियर। तो इसको इसलिए विंड इरोजन कम करने के लिए शेल्टर बेल्ट्स और विंड ब्रेक्स भी लगाए जाते हैं। वो अलग एक लेक्चर है कि क्या मेजर्स होते हैं, उसको उसमें डिस्कस करेंगे। नाउ हियर इज द कंसर्न ओनली estimated soil loss, and all these factors are considered because they are very important in eroding soil. So this is the general equation for soil loss due to wind erosion. तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके सॉइल लॉस एस्टिमेट किया जाता है। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन, बट इन यूएस डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन इज यूज्ड, and that equation is known as wind erosion equation. तो इसको, ये इक्वेशन भी हमको पता होनी चाहिए, and this equation may be asked in examination. So they developed a equation and this equation is known as WEQ. WEQ is a wind erosion equation, and this equation is used in USA,
एंड देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ NRCS, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन सर्विसेज, उनकी हेल्प से ये इक्वेशन डेवलप की गई है एंड दे यूज दिस इक्वेशन WEQ, एंड दिस इक्वेशन एस्टिमेटेड सॉइल लॉस इज ए फंक्शन ऑफ IKCLV. So it is not a mathematical equation. Look here, it is function estimated soil loss. This is the soil loss ton per hectare per year. This is the soil loss and is a function. तो ये बिल्कुल लीनियर मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है. इट इज नॉट ए मैथमेटिकल लीनियर इक्वेशन जो हमने पहले इक्वेशन देखा मैथमेटिकल इक्वेशन थी. इट इज अ फंक्शन ऑफ IKCLV. नाउ I is soil erodability index. What is erodability? Erodability is susceptibility of soil to erosion. अगर erodability हाई है then soil का erosion जल्दी होगा. Soil erodability index. If soil has more erodability index means more prone to erosion and definitely there will be more erosion due to wind. Then K is ridge roughness factor, and this ridge are formed by implements, and this ridge roughness factor depends upon the height of the ridge, shape of the ridge and the spacing between ridge. So they make the ridge and then they कैलकुलेट द रिज रफनेस फैक्टर एंड देन एस्टिमेट द सॉइल लॉस. यहाँ देखिए जो विंड इरोजन से सॉइल लॉस एस्टिमेट किया जा रहा है दैट इज डिफिकल्ट एंड इट इज नॉट इजी टू प्रिडिक्ट. इतना इजी नहीं है इसको प्रिडिक्ट करना, एस्टिमेट करना, इसलिए बहुत लंबी कैलकुलेशन होती है. इसलिए हम उस कैलकुलेशंस में नहीं जा रहे हैं, केवल हम जान रहे हैं कि क्या इक्वेशन होती है एंड व्हाट आर द फैक्टर्स इन्वॉल्वड इन. सो रिज रफनेस फैक्टर्स, नॉट रिजनेस, इट इज रिज रफनेस फैक्टर कि रिज की क्या रफनेस है. जब हम टिलेज इंप्लीमेंट से किसी सॉइल में जब हम रिज बनाएंगे तो उसमें क्या शेप रहेगी, कितनी रफनेस रहेगी. एंड दिस इज सी एंड दिस सी इज क्लाइमेट फैक्टर एंड पर्टिकुलरली विद द विंड स्पीड. what is the wind speed in the region and the soil moisture content. It is very important, soil moisture in surface, because if soil there is a moisture in soil then soil particles are attached and soil erosion is less due to wind. जब भी soil में moisture होगा तो soil particles attach रहेंगे, bond रहेगा उनके बीच में और उसमें erosion कम होगा. when soil is dry then erosion is more. so there are two important factor in climatic factor. Wind speed, what is the wind speed? Number 2, soil moisture in surface soil. तो देखिए वेट सॉइल में इरोजन, विंड इरोजन कम होगा और ड्राई सॉइल में विंड इरोजन ज्यादा होगा. विंड में ड्राई सॉइल में पार्टिकल्स डिटैच रहते हैं, ऑलरेडी दूर दूर रहते हैं, जबकि वाटर से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं. देन L इज लेंथ ऑफ फील्ड. किस फील्ड, कौन सा फील्ड? लेंथ ऑफ, इसको कंसिडर किया जाता है लेंथ ऑफ अनशेल्टर्ड इरोडेड फील्ड. unsheltered, there is no vegetative cover. length of unsheltered eroded field. तो एक ऐसा फील्ड लिया जाएगा जिसमें इरोजन हो रहा है एंड देयर इज नो शेल्टर, देयर इज नो वेजिटेटिव कवर. देन उसकी लेंथ क्या है, दैट विल डिसाइड द सॉइल लॉस. इफ इट इज लेंथ इज मोर, डेफिनेटली इरोजन विल बी मोर. देन V is vegetative cover factor, vegetative cover. So this vegetative cover means type of cover, how much soil is covered. Vegetative cover dense है या thin है, type and amount of vegetative cover on soil surface. So we have discussed that what is the role of vegetative cover. Vegetative cover ज़्यादा रहेगा तो wind का जो exerting effect है वो क्या होगा, कम होगा. So IKCLV 5 factors are there and it is a function. It is a functional, okay, it is a functional relationship. It is very important, it is a functional relationship, it is not a mathematical relationship. इसको हम पहले कई फंक्शंस ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो एक फंक्शनल रिलेशनशिप बनती है. डायरेक्ट इसमें कोई मैथमेटिक्स का कोई इक्वेशन नहीं लगती है. सो इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप. बहुत लॉन्ग कैलकुलेशंस होती हैं, विंड स्पीड निकाली जाती है, फिर उसका इफेक्ट देखा जाता है. सो दिस इक्वेशन इज यूज्ड इन USA, ओके, एंड दिस इज कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन, लेकिन हमको पता होना चाहिए व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स. तो ये मैंने आपको बताया कि एस्टिमेटेड सॉइल लॉस इक्वेशन ड्यू टू विंड
इरोजन। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इस लेक्चर को और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, और आपने पहले चैनल इसके जो पहले वीडियो अपलोड हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको भी देखें, ताकि आपको ये सॉइल इरोजन के लेक्चर्स ईजिली समझ में आ सकें। थैंक यू वेरी मच।